Hello kids, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. जल्दी से फोकस चेक करो एक बार. If the board is visible Yes, sir. or Yes, not. sir. Let me just. Yes. Okay, let's start. Videos on कर लो. All right. Okay, so I think this will be our schedule. Works for all of you. Saturday, Sunday, and Wednesday. ठीक है? So that you are not burdened on a specific day a lot. ऐसा ट्राई किया है मैंने. ऑफ कोर्स वेडनेसडे को थोड़ा सा हो सकता है कि क्लासेस ज्यादा हो जाएं तुम्हारी, बट देन यू हैव टू मैनेज दैट. And the total amount of hours that we will be studying will be 5.5 hours in a week, so that is sufficient. काफी कवर कर लेंगे अपन 3 क्लासेस में एक हफ्ते में, so that's a good amount of class hours. ठीक है? ओके केशव, वीडियो ऑन कर. मानसी, तूने मेरे से वीडियोस नहीं मांगे लास्ट क्लास के? So मैं भूल गई. भूल जाएगी तो फिर कैसे रिवाइज करेगी? ऐसे कॉन्सेप्ट से मिस हो जाएंगे. Yes, sorry, sir. आज मेरे को मैसेज करना, देन आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है? लिमिट्स वाला तो कर उसमें से, वरना मुश्किल आएगी. ओके? यस. सो in the last class, just let's do a quick recap. We did, or we started with the definition of a limit. ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मैंने उससे पहले वाली क्लास में बता दिया था. तो then we can define limit, what it is. We will say that a limit exists when both left hand limit and right hand limit are finite and equal. Only then does a limit exist at a point. ठीक है? लिखने का रिप्रेजेंटेशन होता है लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to l, ऐसा टाइप का. उसका मतलब ये है when x tends to a, the dependent variable, that is the function, it is tending towards l. That is the meaning of l, limit. Then I gave the difference between the value of the function and the limit of a function at a point. दोनों चीजें डिफरेंट हैं in meaning. ठीक है? Limit of a function and value of a function at a point are two different things. Now it is possible that value of a function and limit of the function are same, and it is possible that they may not be same. ठीक है? One value of a function may be something else. Limit of the function may be defined or may not be defined. ऐसा भी हो सकता है कि वो infinity आ रही हो limit of the function, but value of a function 3 आ रही हो, या कुछ भी value आ सकती है. So that is two different things that you need to understand. ठीक है? Limit of function का मतलब हुआ कि limit x tends to a, f of x लिख रहे हैं अपन. That means x जब a की तरफ tend कर रहा है, not exactly a, तब कुछ limit आ रही है. But value of a function at a is represented by f of a simply. यहाँ पे x की value exactly a है, तब ये value of a function हो जाएगी. So this might be something else, say capital L. Then we started with indeterminate forms. ठीक है? Indeterminate forms आज अपन वापस से करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम केशव ने मेरे को फंसा दिया एक जगह पे.
अपने यूट्यूबर्स को देख देख के he started a conversation and we got सर बट caught आपने up वो in that. वीडियो एक बार देखी थी? मैं देख तो नहीं पाया, बट 0/0 टेंड्स टू 1 ये वाली गलत चीज है, ठीक है, दैट इज नॉट सर 0/0 नहीं, 0 रेस्ट 0 to the power 0, आई एम सॉरी, 0 to the power 0 टेंड्स टू 1 ये गलत है। वैसे उसमें क्या कंक्लूड किया है, आई हैव नॉट सीन दैट, बट एज यू आर सेइंग कि 0 to the power 0 विल टेंड टू 1 या 1 होने वाला है, तो वो गलत हो जाएगा। उसका रीजन मैं बताऊंगा आज, ओके। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, as I told, indeterminate forms are discussed only when we are talking about limits, ठीक है। So we are only taking the case of limits here, not exact values. So when we start with 0/0, this is an indeterminate form, ठीक है। अभी देखने पे तो ऐसा लगेगा कि 0 लिखा है, 0 लिखा है, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 नहीं ले रहे हैं अपन। These are, numerator is also tending towards 0 and denominator is also tending towards 0. So they are very, very, very small quantities, not exactly 0. Representation 0 से किया है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हो गया लिमिट्स के लिए। लिमिट्स का मतलब ये हुआ कि they are tending towards 0. Now 0/0 is an indeterminate form. इसका मीनिंग है कि अपन 0/0 की वैल्यू डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं व्हाट इट विल बी और वेयर इट विल टेंड टू। Meaning we cannot say if this will be a very large value or it will be a very small value or somewhere in between. We cannot say, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। I tend to not take examples when talking about indeterminate forms, so you have to visualize कि 0 is a very, very small number, ठीक है, और नीचे भी बहुत 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 छोटा नंबर है, ठीक है। So can you tell exactly कि ये कहाँ टेंड करेगा? Will it be tending towards infinity or it will be tending towards 0 or somewhere in between? ऐसा अपन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। I took an example which tells us कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे x tends to 0, limit x tends to 0, x square upon x लिखा। Okay, Mansi, this is for you because you missed this in the last class. तो अच्छे से समझना है। x tends to 0 है, तो न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एक्स, दोनों 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, करेक्ट। देन इफ आई राइट लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन आई एम राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x अपॉन x, both numerator and denominator are tending towards 0. Okay, but if I solve this further, यहाँ पे x और x को मैं कैंसिल कर सकता हूं। उसका रीजन ये है कि x is not exactly equal to 0, ठीक है। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है मतलब 0 नहीं है, 0 के पास में है, तो x को अपन कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 0 नहीं होगा। सो वी आर जस्ट रिमेनिंग विथ x और x की वैल्यू 0 डाल सकते हैं, दैट मीन्स इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। So in the first case the limit is coming to be 0. Second case में क्या हो जाएगा? Again we can cancel x, but now this is 1 upon x. X is tending towards 0, so this is 1 upon 0. That will tend towards infinity. So this is a very small number. This is a very large number. और यहाँ पे क्या हो रहा है? x और x cancel किया, so we are getting the limit 5, which is somewhere in between. So we cannot give a definite answer कि कौन सा आने वाला है वैल्यू। That is upon finding the limit do we get the value की क्या आएगा, ठीक है। डेफिनेटली अपन आंसर नहीं दे सकते हैं। So 0/0 is an indeterminate form. इसी को लेते हुए अगर मैं ऐसे पूछूं कि 0 upon infinity है,
Can you tell me what is this indeterminate or determinate form? सोचना है. एक very small number is divided by a very large number. Can we tell whether this will be, can we determine where it will tend to? Definitely. Because it would be a very small number. Yes. हाँ, वापस repeat करना. 0 because it's a very small, it would be a very small number. हाँ, 0 की तरफ tend करेगा. If I'm writing equal to 0, this means I'm taking this as limit. It is tending towards 0. Because a very small number divided by a very very large number will again be a very very small number. तो ये 0 की तरफ tend किया. So this is a determinate form. अपन बता सकते हैं कि 0 की तरफ ही जाएगा. Now if I ask, suppose infinity upon 0, It won't tend towards 0 because it would be a very large number. so it will tend to Infinity. So we can always give that this will always tend to infinity. क्योंकि a very large number divided by a very small number, तो again it will be a very large number only. So it will tend to infinity. So ये दोनों determinant form हो गए. ठीक है? Now I'm gonna ask you कि I'll give the combinations that can be made and you have to tell whether they will be indeterminate or determinant. ठीक है? अगर ये समझ में आ गया तो. Suppose I ask, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 into infinity. It would tend towards infinity. It will tend towards infinity. कैसे? No, 0, 0, 0, sorry. 0 की तरफ tend करेगा. Yes. Sir, दोनों हो Why? सकते हैं. So because anything multiplied by 0 is 0. Again, देख मैंने देखो बोला है अभी कि अपन 0 नहीं ले रहे हैं उसको. 0 मत समझ उसको. We are talking about limits. So this can be a positive number or it can be a negative number. Very close to 0. Sir, So it it's would tend- indeterminate. Yes, one by one. हाँ मानसी पहले तू बता. It would tend towards infinity, I guess. It will tend towards infinity. Again. कोई मैंने बहुत लार्ज नंबर लिया और एक बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वी डू नॉट नो इन्फिनिटी की तरफ कैसे जाएगा. ये बहुत ही स्मॉल नंबर है, वेरी क्लोज टू 0. पॉजिटिव ले लेते हैं चल एक सेकंड के लिए. ये पॉजिटिव नंबर है, वेरी क्लोज टू 0, और ये बहुत लार्ज नंबर है. तो कैन यू से कि इन्फिनिटी आने वाला है. अरे किसी 0 से 1 के बीच में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है ना, बड़ी थोड़ी होती है. हाँ केशव. Sir, we can't define it, sir. It can be anything. चल रीजन बता कैसे. Sir, because मतलब if we multiply by a very small number तो decrease हो जाएगी value. At the same time अगर बहुत infinity से multiply कर रहे हैं बहुत छोटी value को तो it can be very large also. So we वेरी can't- लार्ज वाला केस कैसे हो सकता है बता. Don't know, sir. ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है बिकॉज वी डू नॉट नो. एक तो ऐसे समझो कि एक पॉजिटिव अगर हो गया, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर वेरी लार्ज नंबर, तो ये पॉजिटिव आएगा आंसर तो, बट वी डू नॉट नो कि ये कितना छोटा है और ये कितना लार्ज है. ऑफ कोर्स इससे तो छोटा हो जाएगा बट स्टिल इट माइट बी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बिकॉज इट मे बी अ वेरी लार्ज नंबर स्टिल. ठीक है, इट मे बी स्टिल अ वेरी लार्ज नंबर. अब मैं एग्जांपल नहीं लेना चाहता हूँ. ठीक है, थिंक दैट दिस हैज अ लॉट ऑफ डिजिट्स, दिस हैज अ लॉट ऑफ डेसिमल डिजिट्स. तो अब उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर होगा उसमें भी बहुत सारे डिजिट्स हो सकते हैं. सेकेंड, अगर मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, क्लोज टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नेगेटिव नंबर हो सकता है.
तो ये नेगेटिव इंटू इंफिनिटी, अगेन इट विल बी अ नेगेटिव नंबर. वी डू नॉट नो इट विल बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है, स्मॉल या लार्ज भी आ सकता है. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन. ठीक है. अगेन इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 0 इंटू इंफिनिटी इज सेम एज 0 अपॉन 0. इंफिनिटी सेम एज 1 अपॉन 0. तो 0 अपॉन 0 अपन ने कर ही रखा है कि इंडिटर्मिनेंट है. सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कि इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, कैन यू डिटरमाइन? Infinity, indeterminate. इंडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट? Determinant. इंफिनिटी आएगा. करेक्ट. दिस इज इंफिनिटी. A large number into a very large number is again going to be a larger number. So infinity. ठीक है. Infinity plus infinity. Indeterminate, Indeterminate. I guess. Yes. कैसे? अगर एक बहुत लार्ज नंबर लिया और फिर एक और उसमें लार्ज नंबर ऐड कर दिया तो क्या बता ही नहीं सकते कि कैसा आएगा? छोटा नंबर हो जाएगा क्या? No, sir. The determinant होगा और infinity होगा. इंफिनिटी तो आने वाला है यार. दोनों अगर बहुत लार्ज नंबर है, ऐड करने पे तो इंफिनिटी आएगा ना. इट विल बी अ लार्ज नंबर. सो दिस इज डिटर्मिनेंट. ये सारे डिटर्मिनेंट है. नाउ से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. 0. मतलब close to 0. क्लोज टू 0 हो जाएगा. और very large. अरे यार, Indefinite. अभी अभी तुम लोग ऐसे कर रहे हो कि ये इंफिनिटी सेम ले लिया, ये इंफिनिटी सेम ले लिया, ऐसा थोड़ी है. हाँ मतलब close to 0 because a very large number subtracted by a base. नो. So indeterminate. इनडिटर्मिनेंट होगा. बिकॉज ये गलती मत करो कि इंफिनिटी और इंफिनिटी सेम ले लिया. अभी यहाँ पे मैंने इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी लिख दिया तो ये सही तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी सेम है या ये इंफिनिटी सेम है. दे आर ऑल डिफरेंट इंफिनिटीज. यहाँ पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है. दिस इंफिनिटी, ये कोई एक टर्म है जो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है. So we cannot say whether it will tend towards 0 or infinity or some other place. It might be some finite number also. कुछ बता थोड़ी सकते हैं कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कहाँ जाएगा. सपोज ये कोई बहुत लार्ज इंफिनिटी है, कोई उसमें से कोई स्मॉल इंफिनिटी माइनस करी. अभी ये समझ में आ रहा है कि लार्ज इंफिनिटी माइनस स्मॉल इंफिनिटी, तब तो इंफिनिटी आ जाएगा. बट सपोज दे आर क्लोज, तो फिर डिफरेंट केस हो जाएगा. फिर वो 0 की तरफ टेंड कर सकता है. अगर एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया तो माइनस की तरफ भी टेंड कर सकता है. We do not know. So this is an indeterminate form. नहीं बता सकते अपन कि ये कहाँ टेंड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट. So this is determinant, 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 indeterminate, indeterminate. अब नेक्स्ट पे आते हैं. These four: 0 to the power 0, infinity to the power 0, infinity to the power infinity, and 0 to the power infinity. इसमें से सोचो कि कौन से डिटर्मिनेंट है, कौन से इनडिटर्मिनेंट है. I think 0 to the power 0 is determinant and 0 to the power infinity is indeterminate. 0 to the power 0 is determinant and 0 to the power infinity is indeterminate.
ये इनडिटर्मिनेंट है। अच्छा, और डिटर्मिनेंट कौन सा है? ये दोनों इनमें से? और क्या बता सकते हैं इन दोनों के बारे में? सर फोर्थ वाला तो डिटर्मिनेंट है ना? फोर्थ वाला डिटर्मिनेंट है? सर 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी तो ऑलवेज 0। अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी, हाँ ऑलवेज जीरो। इंडिटरमिनेट, सॉरी माय बैड। I think जो infinity to the power infinity है, that would be determinant because एंड it वेयर विल इट टेंड? infinity, टू इंफिनिटी। I guess. गेस तो कर, बट थोड़ा एजुकेटेड गेस बात कि सही है क्या, रीजन सोच उसके पीछे। ऐसे गेस करने लग गए तो फिर अपन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि सही है नहीं। A large number का power भी large number होगा, so it would हाँ, be a huge number ना। ऑफ कोर्स इट विल बी इंफिनिटी। कोई लार्ज नंबर है, उसका पावर कोई लार्ज नंबर लिया तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो होगा, वैल्यू बढ़ती तो जाएगी। सो ऑफ कोर्स दिस इज इंफिनिटी। ये भी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, तो दिस इज डिटर्मिनेंट। इस पे आ जाते हैं 0 टू द पावर इंफिनिटी। सोच के देखो, अ वेरी स्मॉल नंबर रेज टू पावर वेरी लार्ज नंबर। So I think it would tend to 0 only. हाँ, बता क्यों? Because 0 का कोई भी पावर हो तो वो छोटे नंबर का कोई भी पावर हो, so it would be less. हाँ, जीरो मत यूज कर, जीरो मत यूज कर, जीरो नहीं ले रहे हैं। नंबर का बड़ा पावर हो, it would still हाँ, be a very small number. हाँ, क्योंकि कोई भी नंबर लेते हैं छोटा नंबर, ठीक है, वेरी स्मॉल नंबर, उसकी पावर अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो वो छोटा ही तो होता जाएगा। जीरो से 1 के बीच में कोई नंबर होता है तो उसकी पावर इंक्रीज करते हैं तो वो स्मॉल होता जाता है ना। और नहीं, नहीं है पता ये? सब बढ़ता नहीं है उसमें, बढ़ता है? अच्छा, सिर्फ जैसे अगर 2 की पावर 5 तो अरे बढ़ेगा ही जीरो ना। से 1 की पावर, 0 से 1 के बीच में बोल रहा हूँ मैं, समझ तो सही बात को। 1.5 की जो भी पावर होगी वो भी आगे जाके मतलब इंक्रीज ही तो क्या? होगी। वापस बोल, किसकी पावर? 0.5 की पावर वो हाँ, इंक्रीज ही तो। अच्छा, करके देख, कर कर, एक कैलकुलेटर के बिना। हाँ, हाँ केशव तू बता, 0 टू द पावर इंफिनिटी। सर मतलब बिटवीन 0 to 1 अगर वैल्यू है तो देन उसका कोई भी पावर डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज होता जाएगा ना, तो 0 से 1 के बीच में तो मैंने ये लिया है, सोचा है सिर्फ, बट ये एक्चुअली वेरी क्लोज टू 0 है। ठीक है, तो वो पावर में लेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल कीप डिक्रीजिंग। इट विल कीप डिक्रीजिंग। हाँ मानसी, हुआ मतलब या नहीं? हाँ वो तो हो गया। वैसे हुआ क्यों लेकिन? अरे यार, 0.5 को तू कैसे लिखेगी? 1/2। उसकी पावर अगर तू करेगी कोई भी नंबर तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता रहेगा ना। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कम ही तो होगी। 0 से 1 के बीच में जब भी अपन कोई फ्रैक्शन बनाएंगे तो डिनोमिनेटर इज बिगर, तो पावर इंक्रीज करने पे डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, सो ऑफ कोर्स वैल्यू विल डिक्रीज। तो ये भी डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इसमें नेगेटिव वाली का भी ध्यान रखो, अगर 0 से छोटा नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, उसकी पावर कुछ लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल स्टिल टेंड टुवर्ड्स 0, इट विल स्टिल कीप गोइंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। केशव तू क्या फ्रीज हो जाता है क्या बीच बीच में? एकदम तेरा कैमरा ऐसा लगता है कि फ्रीज हो गया हो। सर आई डोंट नो, मे बी। अच्छा, हो सकता है कैमरा ही फ्रीज हुआ हो। हाँ, so this will tend towards 0, this is again a determinant form। so इस पे आ जाते हैं, 0 to the power 0। It would tend towards 0 only.
It will tend towards 0. बता सकते हैं अपन? मे बी क्योंकि एक छोटा नंबर का पावर छोटा नंबर वुड बी छोटा ही ना. हमेशा सही नहीं है. जैसे 0 to the power 0 इट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब ऐसे समझ, 0 का मतलब है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है पावर में भी. ठीक है. अब ये 0 अगर पॉजिटिव ले लेते हैं, वेरी क्लोज टू 0 पॉजिटिव नंबर, और पावर कुछ पॉजिटिव नंबर ले ली. ठीक है. वी डू नॉट नो वेयर इट विल टेंड. या फिर अगर बोल भी पता भी चल जाए कि कहाँ टेंड करेगा, तो वो एक केस हुआ. बट सपोज यहाँ पे 0 ले लिया और पावर नेगेटिव ले ली, तो दैट विल टेंड टू अ डिफरेंट वैल्यू, बिकॉज 1 अपॉन सम पॉजिटिव नंबर आएगा. पावर नेगेटिव होगी तो दैट इज 1 अपॉन अ पॉजिटिव नंबर ना. अब ये नेगेटिव अगर हो गया और ये पावर कुछ हो गई, तो देन इट विल टेंड टू अ डिफरेंट वैल्यू. और अगर नेगेटिव हो गया और पावर भी नेगेटिव हो गई, तो इट विल अगेन टेंड टू अ डिफरेंट वैल्यू. So we cannot determine where exactly will this tend to. अब केशव ने मेरे को लास्ट टाइम इसी पे मतलब उसने कुछ ऐसा देख लिया था यूट्यूब पे, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा था. 0 to the power 0, he was saying that it will tend to 1. अगर हम डेफिनेटली अगर हम नहीं बोल रहे कि 0 है, तो फिर वो 10 to 1 ही करेगी. लेकिन अगर वो एक्चुअली 0 है, तो 0 to the power actual 0 would be 1, because ये a किसने to बोला? the अच्छा, power 0 की पावर 0 1 हो जाएगा? एक्चुअल 0 में भी 0 की पावर 0 1 हो जाएगा? वाह यार, ये तो बहुत that's ही गजब totally no कैलकुलेशन कर गया. a to the power 0 is equal to 1. अरे तो a to the power 0 जब होता है, उसमें a 0 नहीं लेते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 नहीं होता है बेस. ये तो 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, मतलब नथिंग फ्रॉम नथिंग टू द पावर नथिंग. तूने बता दिया कि ये 1 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. इसका मतलब यू आर सेइंग कि 0 अब कितनी बार भी उसको मल्टीप्लाई करें कि 1 थोड़ी आ जाएगा कभी भी. ऐसे गलत चीजें मत पढ़ो. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 टू द पावर 0, वी डू नॉट नो व्हाट इट विल बी. अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो. अब लिमिट पे आते हैं. तो व्हेन वी आर टेकिंग स्मॉल पॉजिटिव नंबर रेज टू द पावर ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तब हो सकता है कि वो 1 की तरफ टेंड कर जाए. बट अगर ये पॉजिटिव नंबर हो गया और पावर में नेगेटिव नंबर हो गया, तो वो 1 से बड़ा नंबर भी हो सकता है. ठीक है. दो इट स्टिल माइट बी टेंडिंग टूवर्ड्स 1, तो चलो वो केस भी मान लेते हैं. केशव, लास्ट टाइम. ठीक है. अब ऐसे समझ, जीरो टू द पावर 0. ठीक है. ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इट माइट बी टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आ रहा था. ठीक है. अगर 0 टू द पावर सम नेगेटिव नंबर ले लिया, तो इट वाज ग्रेटर देन 1, बट स्टिल यू माइट से दैट इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1. बट अगर नीचे नेगेटिव नंबर ले लिया, ऊपर पॉजिटिव नंबर लिया, तो इट विल नॉट टेंड टू 1 नाउ. इट विल टेंड टू सम नेगेटिव नंबर. करके देख. कैलकुलेटर यूज कर रहा था ना तू कल पिछली क्लास में ज्यादा. देख देख, कोई भी नेगेटिव नंबर ले छोटा बेस में, और पावर में कोई पॉजिटिव नंबर ले. ये 1 की तरफ टेंड नहीं करेगा. Sir, it tends to -1. हाँ. और अगर नेगेटिव नंबर यहाँ पे ले लेते हैं बेस में, और पावर में भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, तब
So again -1, but from the left side. तो फिर अब चेंज हो गया ना सिचुएशन. So unless we solve it further, we do not know where it will tend to. डायरेक्टली अपन नहीं बता सकते कि ये इस तरफ ही टेंड करेगा. ठीक है. Yes, sir. या सो अगेन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो वो गलत हो गया तेरा, जो ये 0⁻01 की तरफ टेंड हो रहा था. पॉजिटिव थोड़ी है जरूरी कि पॉजिटिव ही होगा. आगे. सो दीज आर 4 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. नेक्स्ट. अच्छा, एक रह गया इंफिनिटी टू द पावर 0. इसके बारे में बताओ. इनडिटर्मिनेट होगा. क्यों? क्योंकि it's a very large number to the power very small number and we don't know which power what the power is, so it is going to be the same. No, I don't know, it's not going to be itna bada number. Sir, it can be small or big. It can be small or big. ऐसे समझो, इंफिनिटी टू द पावर पॉजिटिव नंबर ले लिया. पावर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं. तब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर मिलेगा. ठीक है. वो इंफिनिटी टू द पावर पॉजिटिव नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है. इट माइट बी स्मॉल, बट अगर मैंने इंफिनिटी टू पावर नेगेटिव नंबर ले लिया तो दैट इज 1/infinity टू द पावर पॉजिटिव नंबर. सो नाउ डिनोमिनेटर में स्मॉल आ गया. So 1 a small number will be a very large number. So we cannot say whether it will be a large or a small number. So this is infinity to the power 0 and indeterminate form. There are 2 more indeterminate forms. So next one is 1 to the power infinity. यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि 1 को 1 लेके चलना है. Again, we mean by 1 that it is tending towards 1. So base is also tending towards 1, power is also tending towards infinity. तब ये indeterminate form होगा. इसका रीजन ये है कि अगर 1 से जस्ट बिगर नंबर हो गया तो दैट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्योंकि 1 से जस्ट बिगर नंबर हो गया और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. बट अगर 1 से जस्ट स्मॉल नंबर है और पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो वी कैन नॉट डिटरमाइन 1 to the power infinity. And the last one is infinity upon infinity. Again, a very large number upon a very large number. We cannot say whether it will be small, large, or in somewhere in between. Okay, these are the 7 indeterminate forms. 7 ही हैं सिर्फ. Limits जब अपन लगा रहे हैं तब only 7. And why are they important? Because लिमिट लगाना ही अपन तब चालू करेंगे या फिर अपन we will solve further only when we get any of these indeterminate forms in the expression. अगर ये indeterminate form नहीं create हो रहा है किसी में तो we can just directly put the value and get the limit evaluated. But only when we get any of these, तभी अपने को आगे proceed करना है. We have to apply some methods to find the limit. ठीक है, क्योंकि जब ये नहीं आ रहा है तब तो अपन डिटरमाइन कर ही सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है. जब ये आएगा तभी तो अपन को लगानी पड़ेगी ना आगे कोई मेथड, because we do not know what the value is. So that's why these indeterminate forms are being studied. And
almost all of them are interchangeable with each other. मतलब एक सबको 0.0 फॉर्म के तरह के 0.0 फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे infinity upon infinity can be written as 0.0. 1 upon infinity को 0 ले लिया, infinity को 1 upon 0 ले लिया, तो 0.0 फॉर्म आ गया. यहाँ पे we can take log लेने पे log of 1 to the power infinity आगे आ जाएगा. Infinity into log 1 is 0. So infinity into 0 आ गया. This is this form. And this form is same as 0.0. Infinity minus infinity को भी 0.0 फॉर्म में ले सकते हैं. जैसे ऐसे समझ सकते हो, because this is not correct exact mathematics. 1 upon infinity को 1 upon 0 minus 1 upon 0 लिया, LCM 0 आ गया, ऊपर 1 minus 1 आ जाएगा, वो भी 0 हो गया. So not precise maths, but you can say that this can be turned into 0.0 form. 0 to the power 0 को भी अगर log लेंगे तो 0 into log 0 आएगा, that is 0 into infinity. Again 0.0 form आ गया. यहाँ पे भी log लेंगे तो 0 into log infinity आएगा, which is again 0 into एक मिनट, log infinity. Will be 0 into infinity. वो भी 0.0 फॉर्म ही है. So every form is interchangeable. यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है. What are the indeterminate forms? 0 upon 0, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, 1 to the power infinity, and infinity upon infinity. So then next concept पे आते हैं, theorems on limits. First one, limit x tends to a, sum of two functions is same as limit of one function plus limit of second function. So we can separate the limit. Subtraction may be applicable है. So difference of two functions, limit of difference of two functions can be written as limit of one function minus limit of second function. Third, limit of multiplication of two functions is same as limit of one function into limit of other function. Fourth, limit of division of two functions is same as limit of one function upon limit of second function. तो सब में हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं. इवन इन पावर,
सो f of x to the power g of x है अगर वन फंक्शन टू द पावर अदर फंक्शन, इसमें भी हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं. सो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x होल टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a g of x. पावर में भी हम सेपरेट कर सकते हैं लिमिट को. Sixth, limit x tends to a k into f of x. k is a constant, तो हम k को बाहर लिख सकते हैं एंड लिमिट सेपरेटली निकाल सकते हैं फंक्शन की. फाइन. देन लिमिट if f of x is less than g of x, if f of x is less than g of x, then limit लगाने पे inequality will remain the same. That is, limit x tends to a f of x is less than limit x tends to a g of x. Inequality will remain the same on applying limit. 8th, if f of x, rather h of x is less than or equal to f of x is less than or equal to g of x, and limit x tends to a h of x is equal to limit x tends to a g of x is equal to L. अगर ऐसी दो कंडीशंस हैं, so f of x is greater than or equal to g of x and less than or equal to greater than or equal to h of x and less than or equal to g of x, and the limit at a for h of x and g of x is both L. दोनों functions के लिए limit L है. Then limit x tends to a f of x is also L. यहाँ पे then. So if these two conditions are true, then this is also true. This is known as sandwich theorem. सैंडविच की स्पेलिंग बताना. WICH होता है क्या सिर्फ, या WHICH होता है? सैंडविच. दिस इज सैंडविच थ्योरम. ओके, इसका प्रूफ सैंडविच थ्योरम का प्रूफ we can understand from the graph. Now these two conditions has to be true. So h of x is less than or equal to f of x is less than or equal to g of x. So suppose ये h of x है, ठीक है, f of x इससे ऊपर होगा, g of x उससे भी ऊपर होगा हमेशा because of this condition. And now if this condition is true, limit x tends to a h of x is equal to limit x tends to a g of x is equal to L. इसका मतलब a पे h of x is tending towards L and g of x is also tending towards L, like this. Correct? तो जो f of x function है, it will always be between these two functions. तो f of x ऐसा ही कुछ आने वाला है और यहाँ पे स्क्वीज होके ऐसा जाएगा. ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ये टच करेंगे या मीट होंगे, एटलीस्ट इस पे तो होंगे ही, बाकी का पता नहीं, इस पे तो होने ही वाले हैं बिकॉज f of x will be going in from between these.
So that's why this is known as sandwich theorem, because f of x is in the middle of g of x and h of x. तो ये एक sandwich type बन गया यहाँ पे. Also known as squeeze play theorem. Squeeze play theorem, क्योंकि यहाँ पे f of x is being squeezed by the two functions. अब क्योंकि f of x मिडिल में से जा रहा है तो ये वाले पॉइंट पे ऑफ कोर्स इसकी भी लिमिट l ही आने वाली है, कोई और लिमिट नहीं हो सकती. आगे क्या समझ में? ओके, सो प्रोसीड करूं. दीज आर द थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, ऑन लिमिट्स. Okay, so then methods to find limits. अब जब अपने पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या कोई भी लिमिट आ रही है, so we can apply these methods to find that limit. ठीक है? What are these methods? First one, for algebraic functions. First method is by direct substitution. What happened to Mansi? Let's wait. Okay, so by direct substitution. Now, by direct substitution, we mean that when we have a limit और उसमें indeterminate form नहीं आ रहा है, we're not getting an indeterminate form. तो limit निकालना is as simple as direct substitution. We can directly substitute and that will be the limit. वही limit हो जाएगी. For example, say limit x tends to a, x square minus 9. इसमें लिमिट निकालना है. अब a की जगह let me take say 2. When x tends to 2, x square minus 9 की लिमिट निकालनी है. If I directly substitute x as 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब नहीं है कि 2 को 2 ही ले रहे हैं अपन, ठीक है, because it is very close to 2, that's why we can substitute 2. Substitute करने पे 4 minus 9 आएगा, which is not an indeterminate form, so the limit will be minus 5. अरे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा तो हो गया ना लिमिट, यही तो लिमिट हो गई. तो हम डायरेक्टली 2 ले लेंगे. डायरेक्टली 2 ले लेंगे.
तो जैसे आपने अभी इसमें डाला कि क्योंकि 4 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है एंड हाँ 9 minus 4 is minus 5 हाँ, तो आपने डायरेक्टली 2 ले लिया। डायरेक्टली 2 ले लिया बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू 2। अब तेरे को लग रहा है कि ये इक्वल टू -5 कैसा आया, बिकॉज यहाँ पे तो 4 नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? यस सर तो ये बिकॉज भी एग्जैक्टली -5 थोड़ी है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली -5। वही तो बात है, लिमिट जब अपन निकाल रहे थे आई टोल्ड यू दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l जब लिखते हैं, दिस इज सेम एज f x टेंड्स टू a देन f of x टेंड्स टू l। तो ये टेंड अप्रोचिंग टूवर्ड्स l ही है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली l। यहाँ पे इक्वल टू लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये f of x इज इक्वल टू l हो गया। तो यहाँ पे 4 डालने से इट जस्ट मीन्स दैट दिस विल टेंड टुवर्ड्स -5, नॉट एग्जैक्टली -5। तो वो तो होगा ही। no matter which value we have, जैसे x tends to 5 है तो हम वही डालेंगे नंबर और because क्या? जो आंसर आएगा it is actually it's approaching that number। यस जो यहाँ पे जो हल्का सा जो माइन्यूट डिफरेंस है वो ही यहाँ पे भी माइन्यूट डिफरेंस होगा, मतलब एग्जैक्टली सेम जरूरी नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो गया, बट इट इज सो स्मॉल दैट वी कैन राइट इट एज 2। ये मेरा फर्स्ट क्लास में यही मीनिंग था लिमिट का। व्हेन आई एम राइटिंग x टेंड्स टू 2 यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर as close to 2 as possible, which is not possible to imagine, इतना क्लोज है, ठीक है? तो ये भी एग्जैक्टली -5 नहीं है, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स -5। okay, so this is by direct substitution। when we are not getting any indeterminate form we can directly substitute the limit। second, by factorization। now in the case that we have a limit which is making an indeterminate form, उस केस में we can factorize the expression and if possible we try to eliminate that factor which is making the indeterminate form। so by factorization we will cancel out that factor and we will make it a determinant form and find the limit। for example, say limit x tends to 4 x to the power 2 minus 16 upon x minus 4। दिस इज आवर फंक्शन, ठीक है? अब मैं अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूं x की वैल्यू 4 तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी 4 माइनस 4 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया 0/0, राइट? सो वी कैन factorize the numerator and the denominator। denominator तो factorized ही है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख देंगे। अब क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म किस फैक्टर की वजह से आ रहा है? व्हेन आई एम पुटिंग 4 4 minus 4 क्रिएट हो रहा है, सो x minus 4 इज द फैक्टर विच इज क्रिएटिंग द इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या मैं x minus 4 और x minus 4 को कैंसिल कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्रैकेट में नहीं है नीचे वाला। अरे यार ये क्या बात हुई, x minus 4 ब्रैकेट में नहीं है, what is that? x minus 4 को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये कोई रीजन हुआ क्या? यहाँ पे ब्रैकेट लगाने से मेरे को कोई रोक रहा है क्या? फिर कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? अरे वो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, x minus 4 ये एक फैक्टर है, ये नीचे एक फैक्टर है। The correct reason was कि ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, that's why we can cancel it। अगर 0 होता तो नहीं कर पाते,
but since when we say x is tending towards 4, it is not exactly 4. तो 4 minus 4 का मीनिंग यहाँ पे x minus 4 का मीनिंग दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, इसलिए अपन कैंसिल कर सकते हैं. सो आफ्टर कैंसिलिंग अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 वैल्यू पुट करने पे दिस इज 4 plus 4 which is a determinant form, तो यही अपना लिमिट हो गया. So we eliminated the factor which was creating the indeterminate form. ठीक है. Third method, by rationalization. In this case, we rationalize either the numerator or the denominator. Concept यही है कि अपने को वो वाला फैक्टर एलिमिनेट करना है which is creating the indeterminate form. ठीक है. For इस इधर अपन फैक्टराइज करके कर रहे थे, here we will rationalize and then we will eliminate. For example, suppose ये ले लेते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6. एक मिनट, लेट मी थिंक. एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है. सबसे पहला वी हैव टू चेक बाय सब्स्टिट्यूटिंग. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ऑलवेज सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली एंड सी इफ एन इंडिटरमिनेट फॉर्म इज क्रिएटेड और नॉट. अगर नहीं आ रहा है तो दैट इज फाइनली द लिमिट इटसेल्फ. ठीक है. सो x की वैल्यू 3 डाली, तो दिस इज 9 प्लस 7 16 का स्क्वायर रूट 4. 4 माइनस 4 0 आ रहा है ऊपर. यहाँ पे 9 माइनस 15 प्लस 6, अगेन दिस इज ऑल्सो 0. 0.0 फॉर्म आ रहा है. सो फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी रैशनलाइज. न्यूमरेटर रैशनलाइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो -4 नहीं होगा अगर हम अरे क्या हो रहा है? रैशनलाइज करेंगे तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. यस सर, लेकिन x स्क्वायर -7 होना चाहिए ना फिर. ओहो, अच्छा. एक्स स्क्वायर माइनस 7 कर लेंगे. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7 ले लूं मैं, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी कैसे लगाऊंगा मैं फिर? क्या हो रहा है मानसी? ऐसी गलतियां मत कर. ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तब जाके ये स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा. कॉन्सेप्ट तो समझ उसके पीछे. मेथड रट लिया बस कि माइनस कर दिया. तो this into this will be x square plus 7 minus 16. X square plus 7 minus 16 is x square minus 9 upon नीचे. यहाँ पे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देते हैं. दिस विल बी x minus 3 into x minus 2 complete into x square plus 7 plus 4. ठीक है. यहां से x square minus 9 को लिख सकते हैं x minus 3 into x plus 3. तो x minus 3 कैंसिल हो जाएगा. x minus 3 कैंसिल होते ही अपना जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो खत्म हो गया.
So in the numerator we will be having x plus 3, नीचे x minus 2 into this expression है, 3 substitute कर दो तो x plus 3 will be 6. यहाँ पे 3 minus 2 is 1 and this is 9 plus 7 16 का square root 4, 4 plus 4 is 8, so 6 upon 8, that is 3 upon 4. This is our limit. So पहले rationalize किया, फिर again factorize करके we cancelled out. Okay. Fourth method. When we have limit x tends to infinity, ऐसी टाइप की जब लिमिट आती है x tends to infinity, what can we do? So I'm making an example. Something like this. ठीक है, अब x is tending towards infinity, so if I directly see infinity to the power 3 is infinity, ये भी infinity हो जाएगा, infinity plus 5, numerator is tending towards infinity, नीचे x cube plus 10x square plus 7, infinity plus 7, again denominator is also tending towards infinity. So infinity upon infinity वाला फॉर्म है. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए we take the highest power of x common from the numerator and the denominator. Highest power of x from the numerator and highest power of x from the denominator common लेंगे. So x cube common आया, we will be having 1 plus 3 upon x square plus 5 upon x cube in the numerator upon x cube into 1 plus 10 by x plus 7 by x cube in the denominator. अब x cube और x cube cancel हो गया, x is tending towards infinity, तो this will tend towards infinity, this will tend towards 0, this will tend towards 0, this will tend towards 0, this will tend towards 0. So we are only remaining with 1 in the numerator, 1 in the denominator, so limit is 1. ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब ये जरूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो x की हाईएस्ट पावर है वो सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी. एग्जाम्पल से ये नहीं सपोज करना है कि ये दोनों सेम ही होंगे हमेशा पावर. यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है. इट मे बी दैट पावर इन द न्यूमरेटर इज डिफरेंट, पावर इन द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, उसमें केस डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, प्रोसीड ऐसे ही करेंगे, बट लिमिट माइट बी डिफरेंट, लिमिट माइट बी समथिंग एल्स. One more way of solving the same type of limit is we can take x is equal to 1 by y. x को 1 by y ले लिया. So if x is tending towards infinity, y will tend towards 0. Yes, बोलना है माइक में, y will tend towards 0. So now we can apply the limit y tends towards 0, 1 upon y cube plus 3 upon y square y plus 5 upon 5, only 5 upon 1 upon y cube plus 10 upon y square plus 7. LCM ले लेते हैं.
This will be 1 plus 3y square plus 5y cube. नीचे आएगा 1 plus 10y plus 7y cube. y cube डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए दोनों. Now y is tending towards 0, so this is 0, this is 0, this is 0, this is 0. 1 upon 1 बचेगा, indeterminate form नहीं है, so this is 1. आगे समझ में? This was how to solve when limit is something like x tends to infinity. Fifth one. Using the formula, using a given formula, we can find the limit. What is the formula? Limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n into a to the power n minus 1. By applying this formula, we can find the limit. When limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, it is equal to n into a to the power n minus 1. पहले इसका प्रूफ देखते हैं. डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, let x be equal to a plus h. Let x be equal to a plus h. ये जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव में भी काम आने वाला है ऐसा डेरिवेशन. So we'll be using a derivation of the similar kind there. Now if x is tending towards a, तो h किस तरफ टेंड करेगा? a या x? x is equal to a plus h है. अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है तो h किस तरफ टेंड करेगा? x Where की will it tend to? x की तरफ. x की तरफ टेंड कर जाएगा. a अरे x कोई a की तरफ टेंड करेगा, x h. l की तरफ. l कहाँ आ गया? कौन सा l? क्या हो रहा है? अरे यार h को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? x माइनस a. तो अगर ये a की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वाली वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी ना. अभी ये सब देखना तो स्टार्ट करो. डेरिवेटिव में कितनी प्रॉब्लम आएगी वरना. h will tend towards 0. न्यूमरेटर हो जाएगा a plus h to the power n minus a to the power n, and denominator a plus h minus a is h.
अब न्यूमरेटर में से a टू द पावर n कॉमन ले रहा हूं मैं, तो यहां से a टू द पावर n कॉमन एंड यहां से भी a टू द पावर n कॉमन. So this will be 1 plus h upon a whole to the power n minus 1. ये समझ में आ गया क्या? यहां से a बाहर निकाल दिया तो a टू द पावर n बाहर आ जाएगा, 1 प्लस h बाय a टू द पावर n बचेगा. फिर दोनों टर्म्स में से a टू द पावर n कॉमन ले लिया. अपॉन h. नाउ यहां पे देखो h टेंड्स टू 0 है, तो जब तक अपन h को एलिमिनेट नहीं करेंगे टिल दैट टाइम वी विल बी गेटिंग एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालें तो a प्लस 0 a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. ठीक है. सो वी आर डूइंग logical steps trying to eliminate h. Now limit h tends to 0. A to the power n into, यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे. 1 plus h upon a to the power n will be equal to 1 plus n upon factorial 1 into h upon a plus n into n minus 1 upon factorial 2 into h square by a square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into h cube by a cube and so on. और ये -1 यहाँ पे. whole thing upon h. केशव क्या हुआ? वीडियो कैसे ऑफ है तेरा? सर मैं थोड़ा जल्दी लीव कर सकता हूँ सर, बिकॉज मेरे तबीयत खराब है सर बहुत. क्या हो रहा है? सर मेरे को कोल्ड हो रहा है सर. तेरे को कोविड हो रहा है? कोविड नहीं हो रहा सर. कोल्ड हो रहा है. हाँ Okay. सर मैं बाकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो अभी रुक जा फिर थोड़ी देर और 15-20 मिनट. ओके सर. फिर मैं एंड ही कर दूंगा क्लास. ठीक है क्या? यस सर. केशव. हाँ. ओके. सो बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है. ठीक है. बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया है. 1 plus x to the power n when x is greater than or equal to -1, greater than -1 and less than 1, and n is any real number, any rational number. In that case, this is equal to 1 upon factorial 0 plus n upon factorial 1 into x plus n into n minus 1 upon factorial 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 into x cube and so on up till infinity. We have used this expansion. Now, मानसी समझ में आ रहा है तुझे? Yes, sir. फॉलो कर पा रही है सारी चीजें? Limit h tends to 0.
ये देखो, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया। अब जो सारे टर्म्स है उसमें h अवेलेबल है, तो सब टर्म्स में से h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, तो h इंटू ए टू द पावर n, ब्रैकेट में आएगा n अपॉन a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h बाय a स्क्वायर एंड सो ऑन upon h. Now we can cancel h in the numerator and denominator. h कैंसिल करते ही इंडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये टर्म 0 हो गया, आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा, that will be n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 h square by a cube, वो भी 0 हो गया, आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सब में h अवेलेबल है। So we will be left with a to the power n into n by a. Which is equal to n into a to the power n minus 1. This is the derivation of this formula. And we'll be using this in differentiation as well. So very important. अब इसको अप्लाई कैसे करना है? So I am taking an example for that. Suppose we want to find limit x tends to 2 x square minus 16 upon x square minus 8. इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2। पहले तो ये देखने के इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, दिस विल बी x टू द पावर 4 एंड दिस विल बी x टू द पावर 3, तब जाके क्रिएट होगा। ओके, अदरवाइज इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था। तो x टू द पावर 4 माइनस 16 जीरो की तरफ टेंड करेगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 8 विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। This can be written as x to the power 4 minus 16 upon x minus 2 into x minus 2 upon x cube minus 8. So x minus 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? This is same as 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 and 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3. लिमिट सेपरेट हो जाएगी दोनों में, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 4 minus 2 to the power 4 upon x minus 2 into limit x tends to 2 x minus 2 upon x cube minus 2 cube. Now this is like this form, ये वाला फॉर्म है। This as well is same, बस इसमें रेसिप्रोकल हो रहा है, तो उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिप्रोकल में लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है, तो वी कैन राइट दैट फॉर्मूला, n is 4 into a which is 2 to the power n minus 1 which is 4 minus 1 so 3 into, यहाँ पे देख, this is limit x tends to x minus 2 upon x cube minus 2 cube, so ये उसका रेसिप्रोकल हो गया, so we will write 1 upon n की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, n minus 1 will be 2, so this is equal to 2 cube और ये कैंसिल हुआ, 4 into 2 8 upon 3, this is the limit।
समझ में आ गया? ऐसे अपने को लिमिट फाइंड करने के वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स. So today we did till algebraic methods. Next में अब trigonometric functions के लिए अपन करेंगे and उसके बाद exponential and logarithm. So I'll stop here today. केशव ने भी लीव कर दिया, ठीक है? And I want you to look at the videos for limits from the last classes. ठीक है? तो वो पक्का देखने हैं उनको and I'll send you the link. ठीक है, मुझे मैसेज कर देना so that I'm able to remember. Okay, sir. Okay, and physics की क्लास भी है आज, ध्यान रखना. 8 Right? 8 o'clock. Yes. Okay. Okay, thank you, sir. अच्छा मानसी, one second. So tomorrow रक्षाबंधन है.